آج ویو 360 میں شمالی وزیرستان میں تباہ شدہ اسکول تاحال دوبارہ تعمیر کے انتظار میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہانگ کانگ کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ افغانستان کے شہر ہرات میں لاک ڈاؤن کے باعث گھریلو تشدد میں اضافہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں گزشتہ 2 دہائیوں سے جاری دہشت گردی سے جہاں زندگی کے بہت سے شعبے متاثر ہوئے ہیں، وہیں پر تعلیم، خاص طور پر خواتین کی تعلیم کو انتہائی نقصان پہنچا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے بھی دوسرے علاقوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ یہاں پر فوجی آپریشن اور طالبان کی طرف سے تباہ کیے گئے اسکول امن آنے کے بعد بھی دوبارہ تاحال تعمیر کے انتظار میں ہیں۔ مزید تفصیلات شمالی وزیرستان سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔ یہ گورنمنٹ ہائی اسکول شاہ احمد خیل ہے۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں واقع یہ اسکول طالبان کی آمد اور آپریشن ضرب عضب کی وجہ سے بند ہو گیا۔ اگرچہ علاقے میں گزشتہ 3 سال سے آبادکاری کا سلسلہ جاری ہے، تاہم یہ اسکول اب بھی کھل نہیں سکا۔ یہ اس کو ڈیمیج ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے، اس کو کام پہ شروع نہیں کیا ہے۔ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد اس کو یہ مسئلہ حل ہو جائیں گے۔ ہمارا بچوں کا مستقبل ہے، اس کو رحم کریں اس پہ۔ شمالی وزیرستان میں تقریباً 700 اسکول ہیں، جن میں تقریباً 150 میں دوبارہ تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ان میں اکثریت لڑکوں کے اسکول ہیں۔ لڑکیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا اب بھی انتہائی مشکل ہے، کیونکہ بہت سے والدین اب بھی طالبان کے خوف سے بچیوں کو اسکول بیچنے سے کتراتے ہیں۔ فیمیل کی اگر آپ بات کریں تو وہ شمالی وزیرستان جو فیمیل کا تعلیم ہے وہ بالکل 0% ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہم نے فاٹا سیکریٹریٹ میں گورنر سے اور KP وزیر اعلیٰ محمود خان سے بھی ہم نے بہت بات چیت کی ہے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا شمالی وزیرستان کا تعلیم میں۔ امن و امان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ تعلیم کی راہ میں کچھ اور رکاوٹیں بھی حائل ہیں، جیسے اسکولوں میں سہولیات کا فقدان اور سٹاف کی کمی۔ پہلے تو امن کا مسئلہ تھا، تو الحمدللہ اب تو امن آ چکا ہے۔ تو یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ بالکل ان پڑھ لوگ ہیں۔ اکثر ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں اس میں زیادہ تر تعلیم نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پہ سہولت بھی نہیں ہوتے۔ وہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ ہوتے، گاڑی کا مسئلہ ہوتے، وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہوتے۔ شمالی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اسکولوں کی تعمیر کے لیے سلسلہ وار کام شروع کر دیا ہے۔ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن یونٹ کی طرف سے جو اسکولز ہے جو ان سے اپروو ہونے ہیں، اس میں وہ بھی پائپ لائن ہے، تو اس سے جتنی بھی یہ ڈیمیج اسکول ہے وہ ریکنسٹرکٹ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فار ٹائم بینگ جن ایریاز میں ہمارے اسکول مکمل طور پر ڈیمیج ہے، اس میں ہم رینٹڈ بلڈنگ کے ذریعے ہم ان کو فعال کریں گے۔ قبائلی اضلاع کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد ان علاقوں کو صوبے کے دیگر اضلاع کے برابر لانے کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم تعلیم جیسی بنیادی ضرورت کے لیے مناسب عمارتوں اور سہولتوں کی کمی صوبائی حکومت کے وعدوں پر فی الحال ایک سوالیہ نشان ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، میران شاہ، شمالی وزیرستان۔ نئی دہلی کے بڑے سرکاری ہسپتال کے باہر ڈیرا ڈالے مریضوں میں سے کسی کو اپنی بیماری جاننے کے لیے ڈاکٹر سے ملنا ہے، کسی کو اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے اور کسی کو ہسپتال میں داخل ہونا ہے، لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ ان 5 سرکاری ہسپتالوں میں سے ایک ہے جو صرف کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں سے نمٹنے کے لیے مخصوص ہے۔ نئی دہلی سے رتل جوشی ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ مریض جو پہلے سے یہاں زیر علاج تھے انہیں دروازے سے ہی لوٹایا جا رہا ہے۔ دلی کے اس بڑے سرکاری اسپتال کے باہر ڈیرا ڈالے ان مریضوں میں سے کسی کو اپنی بیماری جاننے کے لیے ڈاکٹر سے ملنا ہے، کسی کو اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے اور کسی کو اسپتال میں داخلے کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال کچھ ممکن نہیں، کیونکہ یہ ان 5 سرکاری اسپتالوں میں سے ایک ہے جو کووڈ-19 اسپتال میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ مریض جن کا علاج پہلے سے یہاں جاری تھا انہیں دروازے سے ہی لوٹایا جا رہا ہے۔ کوئی بات ہی نہیں کرنا تیار ہے، جدھر بھی جاؤ، جس گیٹ پہ بھی جاؤ نا، اسی گیٹ پہ الٹا سیدھا بولتے ہیں، دھکے دیتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں، اور لیڈیز سے بھی بدتمیزی کرتے ہیں اور جینس سے بھی بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ سب چیز لکھی ہے، پڑھ کے بتا کے جواب تو دے دو کم سے کم۔
कुछ अस्पताल कोविड-19 के अलावा दूसरे अमराज के शिकार लोगों से दाखिले से पहले कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट मांगते हैं। टेस्ट करा के रिपोर्ट मिलने तक वक्त लगता है। अमित लिवर पेशेंट हैं। सुबह से 3 अस्पतालों के चक्कर लगा चुके हैं। इंतजार का एक एक पल इन पर भारी है। पहले वहाँ धक्के खा के आया हूँ मैं, नीचे से लेके ऊपर तक मेरे से चला जा नहीं रहा है। मेरे को फैटी लीवर भी है, मेरे से बिल्कुल भी 2-3 कदम भी चला नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं बाहर बैठा हुआ था। सिर्फ मरीज ही नहीं, बहुत से डॉक्टर्स भी इस सूरत हाल से परेशान हैं। कोविड मैनेजमेंट पॉलिसी जो हमारे देश में भारत में चल रही है, उसमें एडहॉकिज्म और इम्पल्सिव डिसीजन ज्यादा है। इससे लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे क्रूड डेथ रेट अगर देखें तो कैंसर के रोगी, डायलिसिस पे जो मरीज थे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रोगी, ऐसे रोगियों की हालत अति गंभीर होगी और मौतें ऐसे रोगियों की ज्यादा हो जाएगी बिना इलाज की वजह से। दिल्ली हुकूमत ने 30 अप्रैल को सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हुक्म दिया था कि वो ऐसे मरीजों को बिना देखे ना लौटाएं जिन्हें क्रिटिकल केयर की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सभी मेडिकल सर्विसेज जारी रखने का ऑर्डर था। 3 महीने जारी रहने वाले मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान छोटे शहरों और कस्बों से संगीन अमराज के साथ आने वाले इलाज से महरूम रहे। कई मौकों पर ये जानलेवा भी साबित हुआ। ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन हर समय लिया गया। जो डॉक्टर ग्राउंड रियलिटी मेडिकल एक्सपर्ट की तरह ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको लूप में नहीं लिया गया और डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में उनकी भागीदारी ना के बराबर रही। माहिरीन कहते हैं कि कोरोना वायरस के मैनेजमेंट के साथ साथ दूसरे मरीजों की मदद के लिए तवील मुद्दती इंतजामात बेहद जरूरी हैं, क्योंकि वबा का खात्मा होने में अभी वक्त है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 10 लाख से ज़्यादा हो गई है और कोरोना वायरस के बायस होने वाले लॉकडाउन ने जहां पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया है, वहीं इंसानों की ज़हनी और जज्बाती सेहत भी मुतासिर हुई है। अफगानिस्तान के इलाके हेरात में लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखने में आया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोविड-19 के दौरान घर पर रहने का हुक्म अगरचे बीमारी के फैलाव को कम करने में मददगार हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हेरात में इस दौरान घरेलू तशद्दुद में इजाफा हुआ है। मारज़ाई अकबरी एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उनका कहना है कि कोविड से पहले उनके पास आने वाले मरीजों में से कुछ वापस नहीं लौटे। हम तशद्दुद के शिकार खवातीन से अस्पताल में इनफरादी तौर पर मिलते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये राब्ता खत्म हो गया। बहुत सी खवातीन ने फ़ोन पर राब्ता रखा, लेकिन कुछ खवातीन के साथ तो फ़ोन पर भी बातचीत खत्म हो गई। हेरात सूबे में यूं तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तशद्दुद के रिपोर्ट होने वाले केसेस में कमी आई है, ताहम खवातीन के कानूनी मामलात के शोबे की सरबराह कहती हैं कि ये कमी केसेस के रिपोर्ट ना होने के बायस है। माजी में भी हमने खवातीन के मामलात पर कम केसेस रिकॉर्ड किए हैं। हमारे पास तकरीबन 10 खवातीन की शिकायत दर्ज होती थीं, लेकिन अब 2 या 3 ही केसेस हैं और इसकी वजह यह है कि मर्द भी अब घर पर हैं और वो उन्हें तशद्दुद रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देते। हेरात के एक मकामी अस्पताल के सरबराह डॉक्टर आरिफ जलाली कहते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से घर पर रहने की पाबंदी के बायस सिर्फ हेरात शहर में 100 से ज्यादा तशद्दुद के वाक़यात और खुदकुशी की कोशिशें हुई हैं। लोग अस्पताल आने से डरते हैं। हमारे पास मरीजों की बड़ी तादाद हुआ करती थी। हमारे पास 700 बिस्तर थे और अब 300 रह गए हैं। हमने ऐसे 20 केसेस देखे हैं जहां औरतों को मारा पीटा गया था और करीबन 75 खवातीन ने या तो खुदकुशी की कोशिश की है या उन्हें जहर दिया गया है। माहिरीन कहते हैं कि घर पर रहने की पाबंदी ने घरों में तनाव में इजाफा किया है और करंतना के दौरान खवातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद में इजाफे की एक और बड़ी वजह मुआशी दबाव और बहुत से कारोबारों का बंद हो जाना भी है। खलील नूरजई के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। ताज़ा तरीन खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। facebook.com/urdu VOA और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urdu VOA। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रज़ाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे।
پینسلوینیا، میشیگن اور وسکانسن وہ 3 انڈسٹریل ریاستیں ہیں جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2016 کے صدارتی انتخاب میں بمشکل کامیابی ملی تھی، اور یہی وہ 3 ریاستیں ہیں جہاں پر اس سال ڈیموکریٹس کامیابی کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ان ریاستوں میں بہت سی آبادیاں موجود ہیں جہاں حالیہ کچھ دہائیوں کے دوران مینوفیکچرنگ کے شعبے میں اچھی تنخواہوں والی ملازمتیں غائب ہو چکی ہیں، اور کرونا وبا کی وجہ سے اس صورتحال میں مزید بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ ریاست وسکانسن سے دیکھیے وائس آف امریکہ کی یہ رپورٹ۔ دریا کے کنارے کاغذ کی یہ وسیع و عریض مل وسکانسن ریپڈز کے علاقے کی سب سے تاریخی اور شناختی علامات میں سے ایک ہے۔ اس میں وسکانسن ریپڈز کے علاقے کی جان ہے۔ یہ عالمی جنگوں اور عظیم معاشی بحرانوں کے دور میں بھی یہاں تھی، اور یہ ٹھوس ہے۔ اس مل نے وسکانسن کے ریاستی عوامی نمائندے اسکاٹ کروک کے خاندان کی کئی نسلوں کو روزگار مہیا کیے رکھا ہے، اس وقت بھی جب اس کے عروج کے دور میں ہزاروں لوگ جہاں کام کرتے تھے، اور آج بھی جب اس مل کے آخری لگ بھگ 900 ورکرز موجودہ مالکان سے اپنی تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ یہ مل اس جولائی میں بند ہونے کی تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کاروباروں کی جانب سے طلب میں کمی ہے جو اپنے اشتہارات کے لیے اس کا بنا کاغذ استعمال کرتے تھے۔ آپ کو ایک دھچکا لگتا ہے یہ سن کر کہ یہ پلانٹ اپنی 120 سالہ تاریخ میں پہلی بار بند ہوگا۔ اس سے ہزاروں دوسرے ورکرز بھی متاثر ہوں گے، جیسے لورا ڈیلانی جو اپنے خاندان کا لکڑی کاٹنے کا کاروبار سنبھالتی ہیں۔ وہ ہماری لکڑی لینے والے سب سے بڑے سپلائرز میں سے تھے۔ اب ان کے پاس کئی ٹن لکڑی پڑی ہے جس کا کوئی گاہک نہیں۔ انہیں اپنے ملازمین اور نئے خریدے گئے اوزاروں کی ادائیگی کی فکر ہے۔ یہ مشین $7 لاکھ سے زائد کی مالیت کی ہیں۔ کام کے بغیر یہ خود اپنی قیمت کی ادائیگی تو نہیں کر سکتی۔ اس پیپر مل کی قسمت رسٹ بیلٹ کہلانے والی وسط مغربی امریکی ریاستوں میں ایک عام کہانی ہے۔ اس علاقے میں پلانٹس بند ہو گئے اور بہت سے امریکی جو کبھی گاڑیاں اور ریفریجریٹرز جیسی مصنوعات بنانے کی ملازمتوں سے ایک متوسط طبقے کی آمدنی کماتے تھے، بے روزگار ہو گئے۔ انہیں سیاستدانوں کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کی شکایت ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ بہت اہم ہے، لیکن اسے بہت زیادہ بھلا دیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سن 2016 میں وسکانسن میں اس وعدے کی بنیاد پر بمشکل کامیابی حاصل کی تھی کہ وہ امریکی مینوفیکچرنگ میں ختم ہونے والی ملازمتوں کو واپس لائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں انہیں سارا وقت ایک مشکل لڑائی کا سامنا رہا ہے، اور اگر انہیں اپنا کام کرنے دیا جاتا تو وہ اسے بہت اچھا کرتے۔ چین اور دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی جنگوں کے باوجود مینوفیکچرنگ کے شعبے میں ملازمتیں واپس نہ لوٹ سکیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے متوقع امیدوار جو بائیڈن کو وسکانسن کے حالیہ پولز میں ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ ایسا نہیں کہ ووٹرز جو بائیڈن کے لیے بہت پرجوش ہیں، بلکہ وہ سر ٹرمپ سے بدظن ہو چکے ہیں۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ بیری برڈن کچھ ووٹرز کے ذہنوں سے صدارت کے لیے ٹرمپ کی بنیادی توجہ ختم ہوتی دیکھتے ہیں۔ میرے خیال سے اصل سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کو اعتماد ہے کہ ملازمتوں کے سلسلے میں ٹرمپ انہیں صحیح سمت میں لے کر جائیں گے، یا یہ ان وعدوں کو پورا کرنے میں ناکامی کی ایک علامت ہے جو انہوں نے 4 سال پہلے کیے تھے۔ اس مل کے لیے نئے مالک کی تلاش میں مصروف ریپریزنٹیٹو اسکاٹ کروک کو اس وقت خود دوبارہ انتخابی مارکہ درپیش ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کو وبا سے نمٹنے کے لیے اپنے اقدامات پر تنقید کا سامنا ہے۔ اسکاٹ کروک ریاستی مقننہ میں وسکانسن ریپڈز کے علاقے کی نمائندگی کے لیے 40 سالوں میں منتخب ہونے والے پہلے ریپبلکن ہیں۔ میرے لیے انتخاب ابھی بھی صدر ٹرمپ کا ساتھ ہے، لیکن اب ان چیزوں کے باعث یہ چوائس کچھ کمزور ہو گئی ہے جو یہاں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے ٹرمپ انتظامیہ پر اتنا زور ڈالا ہے کہ وہ یہاں مداخلت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب ان باتوں سے زیادہ کچھ ایکشن کا وقت ہے۔ وسکانسن ریپڈ سے چند گھنٹے کی مسافت پر تائیوان کی الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کمپنی فاکس کون کی ایک نئی فیسلٹی نے 13,000 ملازمتیں پیدا کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم عالمی وبا کے پھیلنے سے بھی پہلے کمپنی صرف 600 لوگوں کو ہی ملازمت دے پائی تھی۔ کین فرابو کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ امریکہ اور چین کے تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے ہانگ کانگ کو حاصل خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اعلان کیا اور ایک قانون کے تحت چینی اہلکاروں پر کئی پابندیاں عائد کی۔ ان اقدامات سے صدر ٹرمپ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی حریف جو بائیڈن کے مقابلے میں چین کے حوالے سے زیادہ سخت موقف رکھتے ہیں۔
चीन पर दबाव डालने के लिए सर ट्रंप ने मंगल के रोज अपनी इंतजामिया की जानिब से ताज़ा इक़दामात का ऐलान किया है। आज मैंने चीन को हांगकांग के लोगों के खिलाफ जालिमाना इक़दामात उठाने पर जवाबदेह बनाने के लिए एक कानून और एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं। हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट नामी कानून के तहत ऐसे अफराद और इदारों पर पाबंदियां लागू होंगी जो ऐसे चीनी अहलकारों के साथ कारोबार करते हैं जो हांगकांग में चीन के नए सिक्योरिटी कानून के निफाज में मुलव्वस हैं। मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया ये कह रही है कि शायद अब बीजिंग को हांगकांग के मामले पर कायल करने का वक्त गुजर गया है और अपने बर्ताव के लिए उसे कीमत अदा करनी चाहिए। सर ट्रंप के हुक्मनामे से हांगकांग की खुसूसी हैसियत ख़त्म हो गई है और अब उसे भी चीन की तरह ही समझा जाएगा। सदर चीन के मामले में अपने आप को नवंबर के इंतखाबात में अपने हरीफ डेमोक्रेटिक पार्टी के मुमकिन सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के मुकाबले में सख्त गिर रहनुमा के तौर पर पेश कर रहे हैं। जो बाइडन की पूरी पेशा वाराना जिंदगी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उनकी मुश्किलात के वक्त में एक तोहफा रही है। जो बाइडन चीन के साथ तजारती जंग शुरू करने पर सदर को तनकीद का निशाना बनाते आए हैं। चीन मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है और हम अपने कानों में उंगलियां डाले बैठे हैं। सियासी मुबसरीन कहते हैं कि सदारती इंतखाबात में चीन एक अहम मसला होगा। इस मसले पर दोनों ही गैर महफूज हैं, मगर शायद सदर कुछ ज़्यादा हैं। सदर ने जनवरी में चीन के साथ तजारती मुआहदा किया, मगर बहुत से मामलात जिन पर अब सदर नाखुश हैं वो इस मुआहदे में शामिल नहीं हैं, जैसे ज़रई अजनास की खरीदो फरोख्त जो कई रियासतों में सदर के लिए अहम है। सर ट्रंप ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि बीजिंग के साथ ताल्लुकात कोरोना वायरस की वबा से निमटने के मामले पर बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और उन्हें तजारती मुआहदे के दूसरे मरहले के बारे में चीन से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से ताइवान को मिसाइल फरोख्त करने के मामले पर चीन ने अमेरिकी दिफाई कंपनी लॉकहीड मार्टिन पर ताज़ीरात आयद की हैं। इसके अलावा सेनेटर मार्को रूबियो और टेड क्रूज पर पाबंदी आयद कर दी है जो चीनी पॉलिसियों के नाकद माने जाते हैं। पैट्सी विराकुसावारा के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। इंग्लैंड ने अपने नए 5G सुपरफास्ट मोबाइल नेटवर्क्स के लिए हुआवे कंपनी के बने साजो सामान के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इससे बरतानवी हुकूमत ने सिर्फ 6 माह पहले हुआवे को इजाज़त देने से मुतालिक दिया गया अपना फैसला तब्दील कर लिया है। बज़ाहिर लगता है कि बरतानिया का ये इकदाम अमेरिका का हुआवे पर पाबंदियों के दबाव के नतीजे में उठाया गया है। इस पर चीन ने बरतानिया को मुस्तकबिल में तिजारती ताल्लुकात में मुमकिना नताइज से भी खबरदार किया है। तफसीलात के साथ ये रिपोर्ट। बरतानवी पॉलिसी के तब्दील होने का मतलब है कि 2020 के आखिर से तमाम मोबाइल सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर हुआवे से नए सामान की खरीदारी और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी और 2027 तक हुआवे 5G टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर से हटाना होगा। ये फैसला मई में अमेरिका की जानिब से हुआवे पर उन पाबंदियों के बाद किया गया है जिनसे अमेरिकी कंपनीज हुआवे को अहम सेमीकंडक्टर चिप्स फराहम नहीं कर सकेंगी। हुआवे की सप्लाई चेन के लिए पैदा होने वाली इस गैर यकीनी सूरत हाल के सबब बरतानिया अब इस मामले में ज़्यादा पुरएतमाद नहीं कि वो मुस्तकबिल में हुआवे के 5G साजो सामान पर इन्हिसार कर सके। हांगकांग में बीजिंग के क्रैकडाउन और कोरोना की आलमी वबा पर चीन के रद्द-ए-अमल के बायस पहले ही बरतानिया और चीन के माबैन ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के तज्ज़ियाकार जेम्स सेल्वन समझते हैं कि हुआवे पर पाबंदी के मुहर्रिकात कुछ और ही हैं। चीन की तरफ से महसूस किए जाने वाले खतरे के लिहाज से दरहकीकत कुछ भी तब्दील नहीं हुआ और ना ही हुआवे के हवाले से समझे जाने वाले बदनीयत अज़ाइम कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। अमेरिका का कहना है कि हुआवे के चीनी हुकूमत से करीबी रवाबित की वजह से अमेरिका को हुआवे से कौमी सलामती का खतरा लाहक है और खदशा है कि हुआवे के साजो सामान जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। हुआवे ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक तिजारती हरीफ को कुचलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी इंतजामिया ने अपने मद्दे मुकाबिल में नाजायज गलती निकालने का फैसला कर लिया है। बरतानिया हुआवे पर पाबंदी आयद करने वाला 5वां मुल्क है। इससे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान चीनी कंपनी हुआवे पर पाबंदियां लगा चुके हैं। हुआवे ने कहा है कि इस इकदाम से बरतानिया डिजिटल सुस्त लेन में आ जाएगा, जबकि बीजिंग ने इसके ज्यादा बड़े मुआशी असरात की तरफ इशारा किया है। इससे ये पेश गोई भी होती है कि बरतानिया में चीनी सरमायाकारी कितनी महफूज है।
चीन इस पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। चीनी तज्जियाकार स्टीव संग कहते हैं कि बीजिंग का गुस्सा एक खतरनाक अलामत है। एक कंपनी चाहे वो सरकारी मिल्कियत की हो या निजी, इसे चीन की हुकूमत की एक ही तरह की हिमायत हासिल है, जिसका मतलब है कि इस कंपनी की हिमायत के लिए चीनी रियासत के इख्तियार में जो कुछ भी है वो इसे बरोए कार्ड लाएगी। ये इस कंपनी को इंतहाई गैर मामूली बना देता है। बरतानिया की तरफ से हुआवे पर यह पाबंदी अमरीकी पॉलिसियों की फतह है। वाशिंगटन को उम्मीद है कि जल्द ही दूसरे मगरबी इत्तेहादी भी इसकी पैरवी करेंगे। हेनरी रिजवल के साथ असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। आपको कैसा लगेगा कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में दाखिल हों तो आपका ऑर्डर लेने के लिए, खाना पकाने के लिए और पैसे लेने का काम इंसानों की बजाय रोबोट्स कर रहे हों? शायद कोरोना बहरान की वजह से ये तस्वर हकीकत बन जाए, क्योंकि ये रोबोट्स इंसानी मेल जोल की ज़रूरत को ख़त्म करके महफूज अंदाज से रेस्टोरेंट का कारोबार जारी रखने के लिए एक मौसर ज़रिया साबित हो सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये किसी फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि रियासत कैलिफोर्निया का एक जदीद खुदकार ढाबा या छोटा रेस्टोरेंट है। यहाँ न स्क्रीन पर आप अपना ऑर्डर दर्ज करें तो काउंटर के आगे और पीछे मुतय्यन रोबोट्स आपका हुक्म बजा लाने के लिए मुतहरिक हो जाते हैं। विपिन जैन इस कारोबार के मालिक हैं। ब्लेंडेड इंसानी अमल दखल के बगैर मुकम्मल तौर पर खुदकार रोबोटिक निज़ाम है जो आपकी पसंद के मुताबिक फलों से ताज़ा, सेहत बख्श और खुश जायका मशरूबात बनाता है। यहाँ इंसानों का अमल दखल सिर्फ इन मशीनों में फल और दीगर अज्जा डालने तक महदूद है जो मशरूबात बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रोबोट्स के तैयार करदा जूसेस के जायके की बात की जाए तो वो किसी तौर भी इंसानी काबिशों से कम नहीं। ये वाहिद तरीका है जो इंसानी मेल जोल की ज़रूरत से बिल्कुल पाक और महफूज है। खुदा न ख्वास्ता अगली बार कोरोना जैसा कोई बहरान हुआ तो आप कारोबार और खाने पीने की सहूलत शट डाउन किए बगैर जारी रख सकते हैं। इनसे मिलिए। फ्लिपी नामी इस रोबोट को दुनिया के पहले किचन मददगार होने का एजाज हासिल है जो वक्त के साथ नई महारतें सीखने की सलाहियत भी रखता है। कैलिफोर्निया ही के एक रेस्टोरेंट में फ्लिपी आपके लिए बर्गर्स बनाने में मसरूफ है। साथ में फ्रेंच फ्राइज पसंद करें तो वो भी हाजिर हैं। कोरोना वबा की वजह से इस टेक्नोलॉजी की इस्तेदाद और डिमांड में बहुत इजाफा हुआ है। रोबोट्स खाना पकाने के माहौल को महफूज बनाते हैं। ये काम की रफ्तार जारी रखते हैं, खास तौर पर कम स्टाफ होने की सूरत में। गो के कोरोना शटडाउन के दौरान खाना पीना ऑर्डर करने के खुदकार अंदाज में इजाफा हुआ है। कुछ अफराद समझते हैं कि ये तब्दीली महज आर्जी है और रेस्टोरेंट्स के कारोबार में रोबोट्स कभी इंसानों की जगह नहीं ले सकते। I'm still skeptical that they'll be very successful. मुझे यकीन नहीं कि ये बहुत कामयाब होंगे। शायद सिर्फ कोरोना बहरान के दौरान हों, लेकिन फिर जितनी तेजी से ये आए उतनी तेजी से चले भी जाएंगे। जब खाना पकाने और उसे पेश करने को मशीनी अमल बना दिया जाए तो हम खाना खिलाने और खाने के इंसानी तजुर्बे को खो देते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में रोबोट्स की दखलंदाजी पसंद करें या ना करें, लेकिन कोरोना बहरान ने उनकी अफादियत और अहमियत बढ़ा दी है। इस वबा के खात्मे के बाद नया नॉर्मल कैसा होगा और क्या उस नए नॉर्मल में रोबोट्स हमारी ज़िंदगियों का मुस्तकिल हिस्सा होंगे, अभी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। और ये था हमारा आज का व्यू 360। आप हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं facebook.com/urduvoa के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए।